दैनिक विद्या संस्कार और अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से मैं आपका सबका सहस्त्र स्वागत करता हूं। मैं अभी पुणे विद्यार्थी गृह के कैंपस में हूं। आज यहां NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके ऊपर आज एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया। उसका उद्घाटन शिक्षण राज्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल उनके हस्ते आज हुआ। और आज मैं जहां खड़ा हूं पुणे विद्यार्थी गृह, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है और उसके बारे में मैं यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर सुनील रेडेकर सर उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। I am the chairman of Pune Vidyarthi Graha. Pune Vidyarthi Graha is the organization working for the educational and social activities since from 1909. It has a legacy of 114 years. So we are having a different type of education facilities available at PVG. That is from the playgroup to post graduation and research work. The all activities are carried out here only, and most of the thing is that we have the destitute children hostel, because this is the main motto of the institution, and we are having 150 students at Pune as well as 150 students at Nashik. So all the care is taken by the Pune Vidyarthi Graha for the betterment of the student and facility of the education as well as the residential provided by them with the free of cost. So this is the main aim of the institution. So again we are having the different kind of education facilities, like center of excellence is also there. For that we have funded near about 60 lakh rupees for the each and every laboratory. For higher education purpose, we are having robotics laboratory as well as electrical testing, vehicle testing lab is also there. So likewise all the laboratories are with us. We are having two engineering colleges. One is at Pune, second one is at Nashik. Likewise there are few English medium schools as well as few Marathi medium schools are also there. And most of the thing is that we are having a old age home also in the same campus at Sakar Nagar. Simultaneously we are facing some problems in the society also. Nowadays there is a different kind of seminars and other things are going on related to NEP 2020. Pune Vidyarthi Graha has taken initiative and they have decided to organize such kind of seminar for the management people, and those are running the institutes like us from the Maharashtra. So we have decided and we have organized one session for them, and we have requested the same thing to the AICT chairman New Delhi, that is Dr. TG Sitaram, and he has committed to come here in Maharashtra, and most of the things that covered by the themselves, and they will guide us how the NEP will be implemented, what will be the challenges, and how to overcome all these problems. So accordingly they visited in the morning and they delivered the speech nicely, and many of the institute owners as well as the management people were present for the same kind of session. And other steering committee chairman Dr. Nitin Karmalkar, and the speakers like RD Kulkarni, he is the vice chancellor of Mumbai University, and then Dabak sir, and many of the persons, they have delivered the good talk about the NEP 2020. एक संस्था चालक के तौर पे आप इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को कैसे देखते हैं? सब जो अभी संस्था चालक है उनको एक ही क्वेश्चन जो है वो फेस करना पड़ रहा है, वो मोस्टली मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। तो उसके बारे में थोड़ा सा वरीड है
क्योंकि many of the students they will go from the institute like us, they will prefer any other institute. तो वहाँ पे जाएंगे तो मेरे फीस का क्या होगा आगे जाके, वो फीस मुझे उनको देना पड़ेगा क्या, फिर से वापस इधर आएगा तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए फ़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो फीस लेने के लिए कुछ निर्बंध डालेगी क्या। तो ये सच टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो सब इस संस्था चालक को है, और अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा सा जो भी प्रोफेसर्स है या कोई लैबोरेटरीज़ है तो नए हिसाब से उनको सेट करने पड़ेंगे, जो कि एनईपी जो है वो 4 मूल्याधार सूत्रों पे बन रही है। उसमें से पहला एक जो बात है कि लड़कों को अपनी अपनी खुद की भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा और संधि भी मिलेगी। उस हिसाब से सब इंस्टीट्यूट को अपने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये पहला टास्क है। दूसरा ये है कि कौशल्य विकास के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, तो कौशल्य विकास की जो भी लैबोरेटरीज़ है वो पहले सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसके लिए कोई फंडिंग रहेगा, तो वो क्या शासन देने वाला है या खुद को हमको उसके लिए फंडिंग डालना पड़ेगा, तो वो अलग से चीज़ रहेंगी रिलेटेड टू फाइनेंस। थर्ड वन इज़ दैट कि अभी जो भी परंपरा के ऊपर शिक्षा देनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैन पावर जो है वो उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो थर्ड इशू रहेगा। और फोर्थ इशू जो है उसके लिए मेरे को लगता है कि उसके लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है वो मूल्याधारित शिक्षण रहेगा। तो मूल्याधारित शिक्षण जो है वो तो इजीली पॉसिबल रहेगा, खाली अपना जो भी सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल हो सकता है। सर, विद्यार्थियों के मनों में भी बहुत सारा भ्रम पैदा हुआ है इस पॉलिसी को लेकर, तो उनको सांत्वना देने के लिए आप क्या बताओगे, क्या कैसे? मुझे तो लगता है कि छात्रों के हिसाब से देखा तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते वो सब सीख जाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में मुझे किसी ने समझाया और मैंने खुद समझ गया, ऐसा होने वाला नहीं है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो भी सिस्टम है बहुत अच्छी सिस्टम है। ज़्यादा करके जो लोग छात्रों में थोड़ा बर्डन लेते हैं और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा अलग से तरीके से देखते हैं, उसको प्रेशर लेते हैं, तो वो प्रेशर यहाँ ये सिस्टम में निकल जाएगा और उनकी हिसाब से वो पढ़ सकते हैं, ऐसा सिचुएशन आगे आए। आज जो वर्कशॉप हो गया, इसका पुणे विद्यार्थी गृह का एक मेन मोटो ये था कि अभी जो भी पॉलिसी है वो पहले पुणे विद्यार्थी गृह के सब स्टाफ मेंबर, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल वो सीख लेंगे। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये पहला इनिशिएटिव लिया है, तो ये सीखने के बाद महाराष्ट्र की जो भी स्कूल्स है, मैनेजमेंट है, उनके लिए पुणे विद्यार्थी गृह कंसल्टेंसी देने के लिए भी तैयार है, और जो भी हमको मालूम है वो बाकी की संस्थाओं के लिए भी स्प्रेड कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने भी अपना मत जाहिर किया कि जो इंडस्ट्री में अभी टेक्निकल साइड ज़्यादा चल रही है उस पर ज़्यादातर फोकस किया जाए। जैसे कि कंपनी में सीएनसी मशीन है, रोबोटिक्स मशीन है, बस सिखाए स्टूडेंट को जाता है लेथ मशीन और फिर कारपेंट्री, तो उनको बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है, पर उसके साथ रोबोटिक जो नए टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहे हैं उसका आपका कहना है कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स में, ताकि हाँ। वो रियल टाइम रियल वर्क कर सके, हाँ। ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस, जो कि हम बुकिश नॉलेज। हाँ बुकिश नॉलेज से ज़्यादा हमें इमीडिएट टेक्निकल नॉलेज कैसे होगा और स्किल लेवल कैसा बढ़ना चाहिए इंडिया को, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस पर भी इंडस्ट्री ने अपने जो है वो स्पेशल लोगों को बुलाया था और उनसे भी सभी ने सहमति दर्शाई थी, जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है उन्होंने भी उस पर सीतारमन सर। हाँ, सीतारमन सर ने भी कहा कि हमें इंडस्ट्री बेस्ड
स्किल्ड स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है, ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज स्टूडेंट्स को। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महाराष्ट्र में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार चर्चा सत्र आयोजित किया गया है और वो भी हमारे कॉलेज में किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि जो एजुकेशन हमारा जो कॉलेज है वो 114 साल पुराना है। सो जहाँ पर शिक्षण का इतना बड़ा पहलू है, वहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो सारे जो एजुकेशन के सेक्टर है वो भी कवर होंगे और इंडस्ट्री के लोगों का भरोसा इस कॉलेज पे ज़्यादा है। तो सबका मेन फोकस यहाँ पर आ गया, इसलिए जो न्यूज़ बननी चाहिए थी नेशनल पॉलिसी के थ्रू और जो जागरूकता फैलनी चाहिए थी वो और ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रस्तापित हो गई।